ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਾਤਾ ਰਵੇਲ ਕੌਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ, ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤਰਸੀਮ ਕੌਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਲੀਨ ਸਿੰਘ, ਬਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਭਗਤਾਂ ਤਰਸਿੱਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮਾਤਾ ਰਵੇਲ ਕੌਰ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸਰਦਾਰਨੀ ਤੇਜ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 115 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੈਰਾਬਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਰਵੇਲ ਕੌਰ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਰਵੇਲ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਲੀਨ ਸਿੰਘ, ਬਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਪੜਪੋਤੇ, ਪੜਪੋਤੀਆਂ, ਪੜਦੋਤੇ ਅਤੇ ਪੜਦੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
हे दरबारा पर धर्मेश करें दी आई है। दर्शन परसिए तुमके जन्म मरण दुख जाई, जन्म मरण दुख जाई। दर्शन परसिए तुमके जन्म मरण दुख जाई, जन्म मरण दुख जन्म
ਰਵੇਲ ਕੌਰ जी ਨੂੰ परमेश्वर ने लंबी उम्र बख्शिश की और लंबी आरजा भोग के परिवार विच संसार विच हो गए ने। विरले विरले जीव ने जिहड़े 100 तो उपर जाते ने, पर माता जी 110 साल तो भी परिवार के दस्सण अनुसार 110 साल तो भी वधेरे आरजा जो है उन्होंने भोगी है। ये ग्रंथां दे विच लिखिया मिलता है कि सतयुग विच लाख साल उम्र बंदा भोगदा हुंदा सीगा, त्रेते युग विच 10,000 साल उम्र रह गई, दुआपर विच 1,000 ते कलयुग दे विच 100 साल उम्र रह गई। तो 100 तो जिहड़े उपर भी जीव जिहड़े है वो अपने सामने उम्र जीव के जाते हैं, उहदे तो बाकी अंकड़ियां दे प्रति भी विश्वास आ जाता है भी पिछलियां समयां विच इन्नी इन्नी उम्र जिहड़ी है वो जीव जिहड़े है भोगदे होणगे। ये धरती दे उत्ते जिहड़ा भी जीव आया है वो एक दिन नूं समा भोग के अपना शरीर रूप भांडा जिहड़ा है उहदा वो बिनस जाता है। जो उपजे सो बिनस है, पर वो आज कै काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। माता जी ने रज की उम्र भोगी है। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਜੀਵ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਗੇ ਕਉ ਕਿਛ ਤੁਲਹਾ ਬੰਦ ਹੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਧਨ ਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਵਜਲ ਸਮੁੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੁਲਹਾ ਬਣਾ ਲਓ। जे तां जहाज ते चढ़ना ते महाराज जी कहते जहाज भी खलियारिया होया सतगुरां ने सागर में बोहिथ पायो हर नानक करी कृपा कृपाले। जहाज भी खलियारिया साडे सतगुरां ने, वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। जिहड़ा इस नाम दे जहाज दे उत्ते अपनी सुरती नूं अपनी बिरती नूं असवार कर लेगा, उन्होंने गुरु महाराज पार कर देंगे। तो इस धरती के उत्ते कई इन्ना ज़्यादा जप तप कर लेंगे, बाकियां नूं ही नाल लैके पार हो जाते हैं। राजे जनक के बारे जिक्र आता है भई देवलोक नूं चलिया गण गंधर्व सभा सुख रासी। एडा वड्डा उहदे बारे जिक्र आता है भई भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। माया दे काम धंधे करदा करदा ही कारोबार दे विच रहिंदा, फौजां खजानियां दे विच विचरदा, अंदरों मन उदास रखदा सी सारी प्रॉपर्टी दे वल्लों। ते जदों दुनिया तो गया है ते भाई गुरदास साहब कहंदे उहदे अंगी संगी भी नाल ही चले गए, जिहड़े उहदे वचन सुणदे हुंदे सी, जिहड़े उहदे लागे बैठ के सत्संग करदे हुंदे सी। वो जिहड़े एडे एडे वड्डे जिहड़े ने धरती के उत्ते आउंदे ने, आप तरे तारेन सरिठा। वो सृष्टि दे विचों भी बहुत दुनिया नूं तार दिंदे ने। मन्ने तरै तारे गुर सिख। ते जिहड़ा महाराज पातशाह फरमाउंदे है भई जिहड़ा दूजियां नूं नहीं नाल लैके तर सकदा, अपने तरन जो कई दुल्हा बन लवे। ते महाराज पातशाह फरमाउंदे भई इस शरीर दी कादी हौमे है। कबीर गर्भ न कीजिए चाम लपेटे हाड़। तो मैं पहला बेनती कर दी भी ਜਿਹੜੀਆਂ रूहां चलियां ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ जिस दिन अंतिम समागम ਹੁੰਦਾ उदों तक भी पता नहीं वो कितनियां कुछ दूर चलियां गईਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲਬਦ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਪ ਤਪ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। तो महाराज सतगुरु महाराज पातशाह फरमाउंदे कि भाई देखो ये जिहड़ा शरीर है इत्थों ही जिहड़ी हौमे शुरू हुंदी है कि शरीर दी हौमे दे नाल शरीर नाल जिहड़े संबंधित समान ने, जायदाद है, रिश्तेदार ने, पुत्र धीआं ने, उन्हां सारियां दा इंसान नूं जिहड़ा हंकार आ जांदा ते हंकार ही एक सब तो वड्डी कंध है ਜਿਹੜੀ परमात्मा ते इस जीव के विचकाए जिहड़ी वो निकली हुई है। अगर वो कंध घट जाती है तो फिर
महाराज अकाल पुरख का मिलाप जिहड़ा है वो बड़ा सुखाला हो जाता है। परमेश्वर का मिलाप कोई बहुत वड्डी महम नहीं रह जाती। महम है अपने अंदरों हौमे नूं तोड़ना। तो पातशाह फरमाउंदे ने कि कबीर गर्भ ना कीजिए चाम लपेटे हाड़। चमड़े दे विच हड्डियां लपेटियां हुईयां ने इस शरीर का जिहड़ा है ये की तू हंकार करना है। आजकल भुए लेटना उपर जामै घास। महाराज कहते अजकल भाव आउण वालियां थोड़ियां समयां दे विच धरती ते ऐ तू सफाल ही लेट जाना। ते जेकर दबा देण वाले धर्म विच पैदा होए होइए ते महाराज कहते उपर घाह जम पैंदा है जदों मिट्टी पा दित्ती जाती है। जे संस्कार कर देण वाले धर्म च पैदा होए होइए ते उपर जामै उपर घाह जिहड़ा है उहदा जामा पहना दिता जाता है भई ये लकड़ियां नूं अग सही ढंग नाल लग जाए। चूरा पराली काही आदि उपर पा दित्ती जाती है जिहदे तो चार तीले खिलरिया होइयां तो भी इंसान पहलां कहंदा कि क्यों खलारा पाया झाड़ू फेरो। उही पराली चूरा काई जिहड़ी ओह उपर पाई जाती है ते पातशाह फरमाउंदे उपर जामै घास। फिर महाराज पातशाह बाणी विच फरमाउंदे है कि कबीर गर्भ न कीजिए देही देख सुरंग सो रंग। जदों रंग का अर्थ है भी स्किन का रंग भई मैं गोरा मैं चिट्टा मेरा सोहना रंग सो रंग। ते सतगुरु की बाणी कहती है भई आजकल तज जाओगे ज्यों कांचुरी भुयंग। भुयंग नाम सप दा ते कांचुरी नाम है उसकी कुंज दा। तो कुंज जिहड़ी बिल्कुल सप वर्गी बनी हुंदी है तो सप विचों निकल जाता है ते कुंज पिछे पई रह जाती। कभी सप ने आके वो कुंज नाल उहनूं कोई गरज नहीं हुंदी, कदे देखिया नहीं भी इत्थे मेरी कुंज सीगी, सप छड्ड के चलिया जाता है। महाराज कहते हैं भी ये जिहड़ी रूह है विचों निकल जाती है ते ये शरीर उपरला जिहड़ा कवर है ये धरती ते रह जाता है। आत्मा ने कभी आके देखिया भी नहीं भी इहनूं तुसीं दबाया सी कि इहनूं तुसीं लकड़ियां च साड़िया सी। ते कबीर साहब कहते फिर शीशे अगे देख देख के ए बंदिया क्यों हंकार कर करके एवें परमात्मा ते आत्मा के दरम्यान अपनी कंध उसारी जाना है। कबीर गर्भ ना कीजिए देही देख सुरंग आजकल तज जाओगे ज्यों कांचुरी भुयंग। तो महाराज पातशाह कहते मिट्टी है ये रब ने मिट्टी इकट्ठी करके तेरा शरीर बना दिता है। कबीरा धूर सकेल कै। धूर नाम है धूड़ दा मिट्टी दा, सकेल नाम है इकट्ठी करके। तो पुरिया बांधी देह पुड़ी बद्धी हुई है। एक सिर्फ पुड़ी बद्धी है जिवें कागज की पुड़ी दे विच मिट्टी बद्धी होवे वो खिलरदी नहीं। कागज उपरों ला दिए सारा किणका किणका हो जाता है। ये चमड़ी का कपड़ा लैके उहदे विच यह मिट्टी की एक पुड़ी बंद की हुई है। परमात्मा ने एक खेल रचाया हुआ है क्योंकि वो परमेश्वर अकाल पुरख बहुत वड्डा, उहदियां फिर खेडां भी बहुत वड्डियां ने। जिवें निक्के बच्चे थल्ले निक्कियां निक्कियां खेडां नाल खेडे जांदे है। जवान बच्चे क्रिकेट खेड रहे हुण फुटबॉल खेड रहे उन्हां निक्कियां बच्चियां नूं वड्डियां दीयां खेडां अज समझ नहीं आउंदियां। जे उड्डे वड्डे हो जाण तो फिर एवड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोए। कोई ब्रह्म ज्ञानी बन जाए तप देता बन जाए रब वर्गा बन जाए फिर रब दियां कुछ फीसदी खेडां जिहड़ियां वो समझ आउंदियां। बाकी सारे आपां बच्चे हाँ रब दियां खेडां जिहड़ियां बहुत वड्डियां ने। चमड़ी रूप कपड़ा लैके उहदे विच धूड़ इकट्ठी करके मिट्टी इकट्ठी करके एक पुड़ी बंद दित्ती हुई है। कबीरा धूड़ सकेल कै पुरिया बांधी देह दिवस चार को पिखना। 4 दिवस का उत्थे ना लिया जाता जो समय के बारे ये कहना होवे भई थोड़ा क समा थोड़े क साल। दिवस 4 को पिखना अंत खेहे की खेहे। मारे कहते 4 दिनों का मेला है दुनिया देखण दे वास्ते बंदिया तू आया है। हस खेड़ के दुनिया नू देख है रो रो के ना देख। तो दुनिया नू हसाउण दी कोशिश कर किसी नू रवाउण दी कोशिश ना कर। रब ने तैनू ये जिंदगी दिती दिवस 4 को पेखना अंत खेहे की खेहे। क्योंकि मिट्टी तो ही बंदा बनया है अनाज तो ही बनया है
जितने भी भोजन इंसान खांदा सारे मिट्टी विचों ही निकलते ने। मक्की, कणक, जौ, छोले, दालां ते दुध भी जिहड़ा है मੱਝਾਂ चारा खांदियां तां दुध बनता है। तो ये जितने पदार्थ ने मिट्टी ने ही अपना रूप बदलाया ते अनाज बन गया। अनाज पेट विच गया है। पेट विच जिहड़े कारखाने रब ने लाए है, विग्यानियां ने, डॉक्टरां ने भावें किन्नी तरक्की कर लई है, वो रब वर्गे अंदर सिस्टम बाहरों पुरजे फिट करके बन ही नहीं सकते। ना उदा दी किसी को किडनी बनाई गई, ना पिता बनाया गया, ना मेदा बनाया गया। रब दे ही एक कौतक ने ते रब दियां खेडां ने। मिट्टी ने रूप बदलाया, अनाज बन गया, दुध बन गया। वो पेट विच गया ते रब ने उहदा खून बना दिता, उहदियां हड्डियां बना दित्तियां। उहदे विचों ही जिहड़ी है वो मां की रखत, पिता बिंद धारा, मूरत सूरत कर विचारा। मां दा लहू ला के, पिता दी बिंद लैके ये मूरत साज दित्ती है। यह पुरिया बन दी देह, पुरी बन दित्ती है, मिट्टी है। ते पातशाह के अंत खेहे की खेहे, अंत नूं फिर भी जिहड़ी है तो खेहे मिट्टी का रूप ही जिहड़ी है वो हो जाती है। इसलिए इस मिट्टी का फिर मान काहदा है, मिट्टी का जिहड़ा वो हंकार काहदा है। इन्ना जरूर है भई इनू शंगारिया सवारिया बहुत वधिया परमात्मा ने। भांडा जिहड़ा सोहना बनाया है। तो भांडे जदों जिहड़े भांडे बनाउण वाले वीर बनाउंदे ने तो उन्हां दी अपनी मौज होया करदी है। तो वो कई भांडियां नूं बहुत गलवा उहदा सोहना बना के उत्ते मोती भी ला दिंदे है। कईयां भांडियां नूं थोड़ा जिहा गुलाई च घट रहण दिंदे, वो चिब्बे नज़र आउंदे है। महाराज बाणी विच एक वचन करदे, कुंभार है एक जो माटी बूंदी। कुंभार किहनूं कहंदे है? बाद विच नाम बदल के ते इह बरादरी दा नाम बन गया, कम्यार बरादरी दा नाम बन गया। इहदा पहला नाम है कुंभार। कुंभार क्यों बनिया? कुंभ तो। कुंभ नाम है घड़े दा। घड़े नूं बनाउण वाला कारीगर, कुंभ नूं घड़े नूं बनाउण वाला कारीगर, भाव जिहड़ा भांडे बना लैंदा वो कारीगर है। तो उन्हें एक जो माटी गूंदी, उन्हें मिट्टी तैयार की, कख कान परे करके लोड़ जोगा पानी पाया, डलियां ढिलियां उन्हें सारियां फेंक के बहुत सोहनी जिहड़ी उन्हें मिट्टी बना ली। उस ही मिट्टी दे विचों उन्हें जिहड़े शकाले बना दिते, चपड़ियां बना दित्तियां, घड़े चाटियां बना दित्तियां, कुछ दीवे बना दिते। तो महाराज पातशाह कहते बनाउण वाले दी फिर मर्जी सी ना कि कुंभार है एक जो माटी गूंदी, बहुविध बानी लाई, बड़ियां विधियां दे उन्होंने रंग कीते भांडियां नूं। काहू मह मोती मुक्ताहल, काहू ब्याद लगाई। मारे कहंदे इकना भांडियां विच मोती जड़ दिते बनाउण वाले ने। काहू ब्याद, ब्याद नाम है नुक्स दा, ते कईयां भांडियां दे विच नुक्स रहण दिता है, उन्हां दी गुलाई ठीक नहीं कीती। इवें ही धरती दे उत्ते कई सोहणे नैन नक्शां वाले तुरे फिरदे, सोहणे कद वाले तुरे फिरदे। तो कई जिहड़े विचारे ओह ब्याद वाले भी तुरे फिरदे, किसी दी बांह पूरी नहीं, किसी दी लत्त पूरी नहीं, किसी दी अख पूरी नहीं। काहू मह मोती मुक्ताहल, काहू ब्याद लगाई। है एक भांडा ही है, बस रब ने साजिया होया ते रब दे हथ बस सी सारा कुछ। इसलिए हुण ये भांडा दावा किहड़ी चीज का बंदा करदा, ये करदा भी मैं चंगा ते तू माड़ा। इहो ही लड़ाई है दुनिया के उत्ते सारे संसार विच, भई मैं चंगा ते तू माड़ा, मैं चंगा ते फलाना माड़ा। ते महाराज जी कहते सतगुरां नूं पुछ के वेखीए भी चंगा कौन है। महाराज फरमाउंदे है भांडा हच्छा सोए जो तिस भावसी। भांडा शरीर रूप भांडा जिहड़ा मिट्टी का बनाया परमात्मा रूप कारीगर ने। भांडा हच्छा सोए जो तिस भावसी, भांडा अत मलीन धोता हच्छा ना होए सी। महाराज जी कहते जे ए भांडिया तू इन्ने पाप करके इन्ना ज्यादा मैला हो गया होएगा, तू भावें तीर्थां दे उत्ते टुब्बियां भी ला के आ जा, तू कदे शुद्ध नहीं हो सकता। पातशाह जी कहते भांडा अत मलीन, जे बहुता ही मैला ही आया है पिछलियां जन्मां दे विचों ही, ते पातशाह जी कहते फिर तीर्थां ते नहातियां ये किते शुद्ध नहीं हो चलिया। ते महाराज फिर कदी भी शुद्ध नहीं होएगा। ते साडी बाणी दा, साडे सतगुरां दा वचन है, महाराज ने किन्ना साफ दस्सिया। महाराज कहते गुरु द्वारे होए,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੁੱਧ ਇਹ ਭਾਂਡਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਝੀ ਹੋਏਗੀ, ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੀਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੋਝੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਏਤ ਦੁਆਰਾ ਧੋਏ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਧੋਤਾ ਜਾਏ ਨਾਮ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਭਈ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵਹੋ, ਤੋ ਦੁੱਧੈ ਕਉ ਜਾਬ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਲ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆ, ਤੇ ਨੀਅਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰ ਫੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵਹੋ, ਤਉ ਦੁੱਧੈ ਕਉ ਜਾਵਹੁ। ਦੂਧ ਕਰਮ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ, ਹੋਏ ਨਰਾਸ ਜਮਾਵਹੁ। ਜਪਹੁ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ, ਇਤਨਾ ਕੁ ਲਾਗੇ ਠੁਨਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਖਲਕਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਸਰ ਕਰੇ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਰਵੇਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੀਗਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੀਗਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਪਰੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ, ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।